السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ حیدرآباد مستقبل میں ڈیٹا سٹی کے طور پر ابھرے گا۔ تلنگانہ کو 1 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آئیکور بایولوجکس یونٹ کا رکھا سنگ بنیاد۔ پانی کے مسئلے پر 2 تلگو ریاستوں کے اجلاس کے ایجنڈے میں بنکچرلا کو شامل کرنے پر تلنگانہ کا اعتراض، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مرکز کو مکتوب۔ ملک و ملت کے استحکام کے لیے تعلیم ضروری، مجلس کے تعلیمی کٹس کی تقسیم، 9 کروڑ روپے سے زائد کی امداد، مسلمانوں میں ترک تعلیم کا رجحان تشویشناک، صدر مجلس کا خطاب۔ ملک پیٹ شالیواہنا نگر میں دن دہاڑے CPI لیڈر کو گولی مار دی گئی۔ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے پولیس متحرک، پرانی مقاسمت قتل کی ممکنہ وجہ۔
और महकमे आबपाशी का रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गिरफ्तार। आमदनी से ज्यादा असासों का इंकशाफ। हैदराबाद के बशमूल दीगर मकामात पर ACB के धावे। और नाज़रीन, अब पेश हैं खबरें तफसील से। शाहमीरपेट जेन्यूम वैली में वज़ीर आला ने आइकॉर बायोलॉजिक्स के यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़रा श्रीधर बाबू, विवेक वेंकटस्वामी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद बल्क ड्रग्स की तैयारी में दुनिया में दारुल-हुकूमत बन चुका है और मुल्क में तैयार होने वाली 33% वैक्सीन और 43% बल्क ड्रग्स यहीं से तैयार हो रही हैं। कोविड के दौरान जेन्यूम वैली से ही दुनिया के कई ममालिक को वैक्सीन बरामद की गई, जिसका सहरा यहाँ के सनतकारों को जाता है। हुकूमतें बदलने के बावजूद सनती पॉलिसी को जारी रखने के फैसले बरकरार हैं। हमारी हुकूमत मजीद सहल और सादा पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ रही है। मुस्तकबिल में हैदराबाद डाटा सिटी के तौर पर उभरेगा। हमने इख्तिदार में आने के बाद अब तक 3,28,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को राग़िब किया है। हम आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए जदीद पॉलिसियों को मुतारिफ करवा रहे हैं। हमारा हदफ है कि आइंदा 10 वर्षों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करें। इस मकसद के हसूल के लिए हम जेन्यूम वैली के सनतकारों से ताउन की उम्मीद रखते हैं। వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిలో 33% కేవలం జీనో వ్యాలీ నుంచే మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నామంటే, అదేవిధంగా బల్క్ డ్రగ్స్లో 40% ఈ ప్రాంతం నుంచే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అని అంటే, ఇక్కడి పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంత నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఈరోజు దేశానికే పేరు తీసుకొచ్చింది. అదే కాకుండా కోవిడ్ ప్రపంచాన్నే భయపెడుతున్న సందర్భంలో కోవిడ్ పేరు తలుసుకోవడానికే, కోవిడ్ వచ్చింది అని అంటే కుటుంబ సభ్యులు కూడా వాళ్ళని తాకడానికి, వాళ్ళని చూడడానికి భయపడుతున్న సందర్భంలో జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ను తయారు చేసి ప్రపంచ దేశాలకు, దాదాపుగా 100 దేశాలకు ఇక్కడి నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ అందించినామంటే ఆ గొప్పదనం కూడా ఇక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలది, ఇక్కడి పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసిన వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్పుకుంటుంది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం आबी तनाज़ात पर मरकज़ की जानिब से AP और तेलंगाना के वज़ीर आला के तलब करदा इजलास के एजेंडे में मरकज़ की जानिब से तब्दीली करते हुए बंकचरला के मौजू को शामिल करने की हुकूमत तेलंगाना ने मुखालिफत की। मरकज़ी जल शक्ति वजारत की जानिब से 16 जुलाई को दहली में मुनक्किद होने वाले इजलास के एजेंडे में बंकचरला प्रोजेक्ट को शामिल करना नामुनासिब है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासती चीफ सेक्रेटरी ने मरकज़ी जल शक्ति सेक्रेटरी को मकतूब लिखा है कि इस पर बहस की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा एजेंडे में फौरी तरमीम की जाए। हुकूमत ने इस मकतूब में गोदावरी बंकचरला लिंक प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तमाम एतराज़ात को भी वाज़ेह तौर पर पेश किया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इस मीटिंग के लिए सिर्फ एक निकाती एजेंडा बंकचरला पर बहस मरकजी हुकूमत को भेजा है, जिस पर तेलंगाना ने इतराज़ करते हुए जवाबन ये खत रवाना किया। तेलंगाना ने अपनी तरफ से पहले ही कई निकात के साथ एजेंडा तजावीज़ रवाना की थी। तजावीज़ में कृष्णा नदी पर ज़ेर-ए-इल्तिवा मंसूबों को इजाज़त देना, पानी की तकसीम, पालमूर और डिंडी मंसूबों को मरकजी हुकूमत की साबिका यकीन दहानी के मुताबिक कौमी मंसूबे का दर्जा देना, तोमड्डी हट्टी के मुकाम पर तामील शुदा प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए 80 TMC पानी की मंजूरी, ABIP स्कीम के तहत मदचमपल्ली मुकाम पर 200 TMC सैलाबी पानी के इस्तेमाल के लिए नए प्रोजेक्ट की तामीर शामिल हैं। मकतूब में कहा गया है कि CWC, GRMB और EAC जैसी मरकजी एजेंसियां बनकचरला मंसूबे पर पहले ही सख्त एतराज़ जाहिर कर चुकी हैं, क्योंकि अब तक बनकचरला को कोई बाकायदा मंजूरी हासिल नहीं है और ये मंसूबा कई क़वानीन और ट्रिब्यूनल फैसलों की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इस पर बहस की ज़रूरत ही नहीं। तेलंगाना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गोदावरी बनकचरला लिंक प्रोजेक्ट पर बातचीत नामुनासिब है
और ऐसे इक़दामात मरकज़ी एजेंसियों की गैर जानिबदारी और साख को नुकसान पहुँचाते हैं। मज़ीद ये कि आंध्र प्रदेश की जानिब से जमा कराई गई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पहले ही मरकज़ी वजारत माहौलियात के तहत EAC ने मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मकतूब में यह भी मुतालबा किया है कि मरकज़ी आबी कमीशन CWC भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे और आंध्र प्रदेश को बगैर DPR दाखिल किए और बगैर टेंडर बुलाए किसी भी कदम से रोका जाए। खत में दोनों रियासतों के वज़राए आला की मुलाकात में गोदावरी बनकाचरला प्रोजेक्ट पर बहस को मौखर करने की भी दरख्वास्त की गई है और जोर दिया गया है कि तेलंगाना की जानिब से दी गई एजेंडा तजावीज़ को इजलास में शामिल किया जाए। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड की तकसीम के नाम पर तुंगतुर्ती में हुकूमत के खर्च पर जलसे के लिए अवाम को जमा किया गया, जबकि ये पूरा सरकारी प्रोग्राम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो रेवंत रेड्डी की तरह निचली सियासत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला के तकरीर करने पर अवाम का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। वजीर झूठ बोलेंगे तो अवाम क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करेगी? वजीर आला की बातों पर अवाम हंस रही थी। वजीर आला ने झूठ बोला कि KCR के दौर में राशन कार्ड नहीं दिए गए। KCR के दौर में 6,47,000 कार्ड तकसीम किए गए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद 1 एकड़ को इजाफा पानी सरबराह नहीं किया गया। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में अवाम फैसला करेगी। हमको कितना भी इश्तियाल दिलाएं, हम मुश्तइल नहीं होंगे। हम 25 साल से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में तालीम पाने वाले तलबा और तालिबात में मजलिस की जानिब से अब तक तकरीबन 9 करोड़ 51 लाख रुपए की तालीमी इमदाद फराहम की गई है और 3,60,000 तलबा और तालिबात को मुस्तफ़ीद किया गया। दारुस्सलाम में मजलिस की जानिब से उर्दू मीडियम की 6वीं से 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। इन स्कूल्स के असातिज़ा, हेड मास्टर्स, औलिया तलबा, तलबा और तालिबात और मजलिस के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। तालीमी किट्स तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मजबूत और मुस्तहकम हिंदुस्तान के लिए नई नस्ल को तालीम से आरास्ता करने पर जोर दिया। उन्होंने मुसलमान तलबा और तालिबात में तर्क तालीम के रुझान को तशवीशनाक करार दिया और इसके तदारुक के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत जाहिर की। मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की तालीम को एक मौसर आले के तौर पर इस्तेमाल करने की उन्होंने वकालत की। तालीमी किट्स के अलावा ऑल इन वन गाइड, SSC इम्तिहानात की फीस, आला निशानात से कामयाब होने वालों के लिए मेडल्स दिए जाते हैं। उन्होंने उर्दू स्कूल्स के असातिज़ा, हेड मास्टर्स की सताइश की जो नामसाइद हालात में जांफिशानी से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों में तर्क तालीम के रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी सतह पर 19 लाख मुस्लिम तलबा ने तालीम तर्क की। ये रुझान लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा है। गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में मर्दों की जानिब से ड्रग्स की लानत को अफसोसनाक करार देते हुए इसको ख़त्म करने और नई नस्ल को तालीम और किरदार से आरास्ता करने को कहा। उन्होंने कहा कि 2005 में मजलिस के मरहूम सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम ने जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महसला अतियात से बचत करते हुए तालीमी इमदाद का आगाज़ किया था और आज ये अमल गुज़िश्ता 20 साल से जारी है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ अक़लियत पॉलिसियों, स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स की रकम कम कर देने का हवाला दिया। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मीर ज़ुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस के दीगर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। 2005 से लेकर 2025 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो अब तक अखराजात या पैसे खर्च किए हैं उसमें क़रीब बल्कि 9 करोड़ 51 लाख रुपये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एजुकेशन किट में, SSC के इम्तिहान की फ़ीस में और जो ऑल इन वन जो दिया जाता है और साथ ही साथ
जो SSC के इम्तिहान में आला दर्जात में पास होते हैं उनको एक ऑनरेरियम या नफ्त इनाम दिया जाता है। उसमें अब तक 9,51 लाख रुपये खर्च किए गए, जिससे इस 20 साल में 3,60,000 के करीब तलबा और तालिबात को इससे फ़ायदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट दिया जाएगा, जिसकी रकमी लागत 51,05,000 रुपये है। मगर ये बुराइयां जो हमारे समाज में भी कि एक बाप है, बीवी पढ़ाना चाहती है और हज़रत शौहर जो है वो सिर्फ इंजेक्शन ले रहे, ड्रग्स में ज़िंदगी गुजार रहे। बीवी अगर इसरार करी तो आप जाके उस पर मारते उसको या फिर आप गाली गलौज करते हो। ये माशरे की बुराइयों का ख़ात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रग्स में पड़ जाएंगे, अगर आप आवारागर्दी में पड़ जाएंगे तो कहाँ औलाद पड़ेगी। और मैं मासूम हमारे बच्चों से अपील कर रहा हूँ कि आप अपना वक्त घर जाने के बाद ये फ़ोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त ज़ाय मत करिएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते, ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग ख़राब होता है, इसमें वक्त ज़ाय होता है। और ज़्यादा रील आप देखेंगे तो आपकी नफ्सियात पर असर करता है चीज़। अब कोई सियासी पार्टी उसको बनाती है तो उनके हमारे मकासद हैं कि हम अपना काम करें, ये काम करें हम। मगर अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस उम्र में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी में पुराने कलाकार जाकर नए कलाकार आते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव की बातों में कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस ने जो गलतियां की हैं, इसको कांग्रेस हुकूमत पर थोप रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे, उस वक्त मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, उस वक्त राशन कार्ड पर फोटो क्यों नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि RRR मेट्रो फेज़ 2 के पास मोदी की तस्वीर लगाई गई। किरण कुमार ने कहा कि बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में अक़लियतों को BC ज़ुमरे में शामिल किया गया। रामचंद्र राव अपनी काबिलियत में इजाफा करें तो बेहतर होगा। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली जी किशोर ने कहा कि वज़ीर आला के दौरे को रोकने का हमने कहीं पर भी ऐलान नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी एक ही तरह का राग अलाप रहे हैं। रेवंत रेड्डी अगर इतनी हिम्मत वाले हैं तो हमको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि तोंगातुर्ती असम्बली हल्के में किसानों को कर्ज माफी हुई है या नहीं, इस पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने तोंगातुर्ती को नहीं, गोदावरी को पानी दिया है। जी किशोर ने कहा कि जुबली हिल्स क्लब में मेंबर बनकर रेवंत रेड्डी सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकारी जलसे में जय कांग्रेस का नारा लगा रहे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के गद्दार हैं, भगवान रेवंत रेड्डी को अच्छी बुद्धि दे। हुकूमत ने गरीब ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो का मालिक बनाने की स्कीम शुरू की। इसके लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार को अपनाया गया है, जिसके लिए दरख्वास्त गुजारों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को मांगा जाता है। इस स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजार की जांच के लिए इसे RTA की वेबसाइट से मरबूत किया गया। इसका यह नतीजा बरामद हो रहा है कि बेशुमार अफराद जो किसी गाड़ी के मालिक नहीं हैं, वेबसाइट में उन्हें मुख्तलिफ गाड़ियों का मालिक बताया जा रहा है। तरफ तमाशा ये कि इन गाड़ियों पर आयद ट्रैफिक चालानात भी इन बेचारे दरख्वास्त गुजारों को आना शुरू हो गए हैं। इस सूरत हाल से परेशान कई मुतासरा ऑटो ड्राइवर्स ने अपने दस्तावेजात के साथ 4TV से राब्ता करते हुए बताया कि वो किसी 2 व्हीलर के भी मालिक नहीं हैं, लेकिन नेट पर उन्हें मुख्तलिफ गाड़ियों के नंबरात के साथ
इसका मालिक बताया जा रहा है। एक मुतासिरा ने बताया कि उनके नाम पर साइकिल भी नहीं है, वो किराए पर ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनके नाम पर 2 4 व्हीलर बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्कीम से इस्तेफादे के लिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा रही है। ऑनलाइन निज़ाम किसी दरख्वास्त गुजार के नाम किसी गाड़ी के होने पर इसे कबूल नहीं कर रहा है। इन मुतासिरा ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले की जांच करे और कैसे RTA की साइट पर जो गलतियां की गई हैं इसका इजाला करते हुए उन्हें ऑटो के मालिक बनने की स्कीम से मुस्तफीद करें। मैं लाइसेंस पे गवर्नमेंट से गाड़ियाँ ऑटो मिल रहे बोल के मैं फाइल डाला, मेरे नाम पे 6 गाड़ियाँ है पहले से बोल के डिक्लेयर करा, और मेरे बाबा के नाम के संग 6 नामा दूसरे मिला के मेरे नाम पे 6 गाड़ियाँ हैं बोल के बोल रहा। और मेरे नाम मैं आज तक कभी साइकिल नहीं निकाला, मैं आज तक तो ऑटो पे 6 गाड़ियाँ कैसे आते। ये गवर्नमेंट से अपील है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये कई लोगों के संग धोखाधड़ी ऐसा चल रहा, RTO डिपार्टमेंट से आ रहा। मैं ये गवर्नमेंट से जो गाड़ी आ रही लाइसेंस पे, मैं वो गाड़ी के वास्ते अप्लाई करा। मेरे नाम पे एक भी गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, मेरे नाम से जो है मेरे वाली साहब के नाम से 4-5 गाड़ियाँ बता रहे हैं। मेरे वाली साहब के साथ जो है दूसरों का नाम अटैच करके इसमें 5 गाड़ियाँ ले लिए कोई। अब ये मेरे नाम की तो है नहीं, मगर फिर भी ये बता रहा है मेरे पास। तो गवर्नमेंट से अप्लाई करता हूँ कि ये चेक करो, फाइल चेक करके जो है मेरे को गाड़ी के वास्ते इंतजाम की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मंगल को कुरमागुड़ा डिवीजन के बानो नगर में 16 लाख, कासिम कॉलोनी में 16 लाख और वाहिद कॉलोनी में 12.5 लाख रुपए के जारी कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि अवामी शिकायत और मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने GHMC के अहदेदारों के हमराह बेगम बाजार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और बलदिया के अहदेदारों को कचरे की निकासी और सीवरेज के मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में बेगम बाजार के ताजिरों ने सदर मजलिस से दारुस्सलाम में मुलाकात करके मज़कूरा मसाइल की शिकायत की थी। तवक्का की जाती है कि जुमेरात के दिन मज़कूरा मसाइल की यकसुई का काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे बरखी मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात करके तरक्याती कामों के सिलसिले में बात की और कामों को जल्द पूरा करवाने की दरख्वास्त की, जिस पर मुशर्रफ फारूकी ने उन्हें तयख्खुन दिया। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने मुशर्रफ फारूकी को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने GHMC के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी और महकमे बलदिया के शुबे लैंड एक्विजिशन टास्क और लैंड प्लानिंग के तमाम ACPs के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में जायजा लिया गया। इसके अलावा उन्होंने मज़कूरा अहदेदारों के साथ हुए इजलास में मुस्लिम जंग पुल से मौज़म जाही मार्केट तक और भईगुड़ा गोशा महल पुराना पुल के इलाके जात के मास्टर प्लान के बारे में भी बात की। महकमे बरखी की जानिब से दरख्तों की कटाई की वजह से 16 जुलाई बरोज़ चहारशंबा अकबर बाग और धोबी घाट के मुख्तलिफ इलाके जात में दरख्तों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। महबूब नगर में तेंदुए की मौजूदगी पर जिला कलेक्टर्स, जिला SP, महकमा जंगलात और दीगर महकमों के आला अहदेदारों ने जंगलाती व पहाड़ी इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को एहतियात बरतने की सलाह दी। इस जंगली खूंखार जानवर को पकड़ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेंदुए को पकड़ने इन इलाकों में पिंजरे लगाए गए हैं। वेरानापेट और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से तेंदुए की मौजूदगी की तल्ला पर जिले नज़्म व नस्क चौकस हो गया है। जिला कलेक्टर विजेंदर बोई और SP D जानकी ने कहा कि दिन रात कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सुबह और रात देर गए तनहा सफर की ममानियत की गई है। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को अकेले जाने से मना किया गया है। जंगलाती इलाके में जाने वहां बैठकर शराब नौशी और दीगर मशागिल से एतराज़ का मशवरा दिया गया है। खुले मुकाम पर रफ़े हाजत न करने की सलाह दी गई है। तेंदुआ नजर आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, इसके लिए भी रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं। महकमे पुलिस, महकमे जंगलात की टीमों की गश्त बढ़ा दी गई है। मलकपेट मूसाराम बाग के शालीवाहना नगर में मंगल की सुबह सीपीआई लीडर का फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सीपीआई लीडर राठौर अपनी बीवी और बेटी के साथ शालीवाहना पार्क में चहलकदमी के लिए आए थे। पुलिस ने बताया कि 3 से 4 नामालूम अफराद स्विफ्ट कार में आए और चंदू राठौर पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि चैतन्यपुरी के साकिन 47 साला चंदू नायक पर 5 राउंड फायरिंग की गई। मुकामी वाक़े से 2 गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चंदू नायक और हमलावरों के दरमियान पुरानी मुकासिमत होगी। मकतूल राठौर एलबी नगर में एक केस में मुलविस रह चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है और हमलावरों की तलाशी के लिए खुसूसी टीम मुतहर्रिक हो चुकी है। सुबह के वक्त पार्क में कई अफराद चहलकदमी कर रहे थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ से अफरा तफरी और खौफ और दहशत देखी गई। वाक़े की तल्ला मिलते ही पुलिस की आला ओहदेदार, क्लॉस और फॉरेंसिक टीमें मुकाम वाक़या पहुंच गईं। मकतूल लीडर को अहलिया और बेटी जो मुकाम वाक़े के पास मौजूद थीं, ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। आमदनी से ज्यादा असासों के सिलसिले में महकमे आबपाशी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मुरलीधर राव को महकमे इंसदाद और शस्तानी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीमों ने मंगल को हैदराबाद, करीमनगर और जहीराबाद में मुरलीधर राव के मकानात पर धावे किए। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ मुरलीधर राव के मकान पर भी धावा किया गया। एसीबी ज़राए के मुताबिक मुरलीधर राव के पास आमदनी से ज्यादा असासे पाए गए हैं। नकद रकम और जेवरात भी बरामद होने की इत्तला मिली है। अब तक 60 से 70 करोड़ रुपए के असासों की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। मेलार्दे फल्ली साई कॉलोनी में वाक़ मकान में सिलेंडर से गैस के खराज और आग लगने के वाक़े से मकीन खौफ के आलम में घर से निकल आए। मुतासरा मकान के पड़ोसियों ने सिलेंडर को बाहर निकाला। आग की वजह से मकान में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि रेगुलेटर को टेप लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से गैस का खराज हुआ। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। हैदराबाद मुस्तकबिल में डाटा सिटी के तौर पर उभरेगा। तेलंगाना को 1 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करना है। वजीर आला ने आइकॉर बायोलॉजिक्स यूनिट का रखा संग बुनियाद। पानी के मसले पर 2 तेलुगु रियासतों के इजलास के एजेंडे में बनकाचरला को शामिल करने पर तेलंगाना का एतराज। वजीर आला की हिदायत पर मरकज को मकतूब। मुल्क व मिल्लत के इस्तेहकाम के लिए तालीम जरूरी। मजलिस के तालीमी किट्स की तकसीम। 9 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद। मुसलमानों में तर्क तालीम का रुझान तशवीशनाक। सदर मजलिस का खिताब। मलकपेट शालीवाहना नगर में दिन दहाड़े CPI लीडर को गोली मार दी गई। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस मुतहर्रिक। पुरानी मुकासिमत कत्ल की मुमकिना वजह। और महकमे आबपाशी का रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गिरफ्तार। आमदनी से ज्यादा असासों का इंकशाफ। हैदराबाद के बशमूल दिगर मकामात पर ACB के धावे। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।